Hello everyone, my name is Kitty Tripathi and I am faculty of Electrical Engineering Department in BBD and IIT. Today we are all studying unit number 4, continuation of polar plots of frequency response analysis for the subject code KEE 502. So let's begin. In previous lectures we have discussed about how do we draw polar plot for various types of system like type 0, type 1 and type 2. Now let's do it with some kind of numerical so that it is much more easier for us to analyze and understand some kind of situations, how to draw a plot. So let's begin with this example. See, there is a question here. In this figure, see we can here realize from this figure that it is a closed loop control system. ठीक है, इस closed loop control system में हमें GS की value given है इस block के अंदर और HS की value भी mentioned है which is equal to 1. ठीक है. In this figure it is given that एक RS input supply हुआ और हमें output receive हो रहा है. What are we expected to do from this question? The first things first, we are expected to draw a polar plot. ठीक है, हमें polar plot draw करना है इस चीज़ का. हम लोगों ने बोला था कि polar plots we draw for open loop control systems, right? For any closed loop control system also we can realize it through their open loop transfer function. That means we will draw plot for GS into HS. मतलब हमें यहाँ पर ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है. दैट इज़ द एडवांटेज ऑफ पोलर प्लॉट, राइट? कि हम क्या कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी डोमेन में रिप्रेजेंट करते हैं स्टेबिलिटी एनालाइज करने के लिए किसी भी सिस्टम की विदाउट कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन, बट वी कैन डू इट विद द ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन इटसेल्फ. ठीक है, मतलब हमें GS अपॉन 1 प्लस HS GS करने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है. हम लोग क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन के एक्सप्रेशन से ही प्लॉट्स को डिड्यूस करेंगे. तो लेट अस सी फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन इज व्हाट, HS इंटू GS. ठीक है, अगर हम इसके ट्रांसफर फंक्शन CS अपॉन RS की बात करते हैं तो व्हाट डज इट बिकम, इट बिकम्स GS अपॉन 1 प्लस HS GS प्लस, इसलिए क्योंकि ये एक नेगेटिव फीडबैक सिस्टम है. ठीक है. नाउ व्हेन व्हाई आर वी टारगेटेड टू ड्रॉ अ पोलर प्लॉट. हम लोग क्यों पोलर प्लॉट बना रहे हैं? हम लोग पोलर प्लॉट इसलिए बना रहे हैं कि हम लोग क्या कर सकें, पोलर प्लॉट के लिए स्टेबिलिटी एनालिसिस कर सकें. हम लोगों ने स्टेबिलिटी एनालिसिस के लिए एक चीज़ पहले भी पढ़ रखी है, दैट इज कॉल्ड एज राउथ-हर्विट्ज़ क्राइटेरिया, राइट? व्हाट डज राउथ-हर्विट्ज़ क्राइटेरिया से, बाय द वे? राउथ-हर्विट्ज़ क्राइटेरिया says that from the location of roots of characteristic equation of any closed loop system, we can define that a system is stable or not. How? If the roots of characteristic equation of any closed loop transfer function lies in left half of S plane, इसका मतलब है that system is a stable system. If any of that root lies on the right side, the system becomes unstable. तो अगर हम characteristic equation की बात करते हैं overall transfer function में, तो what it is? The denominator of the overall transfer function which is 1 plus HSGS. ठीक है, अब जब हम लोगों को किसी सिस्टम की स्टेबिलिटी की बात करनी होगी तो हम लोगों को क्या डिटरमाइन करना पड़ेगा, 1 plus HSGS. ठीक है, नाउ लेट अस क्विकली जंप इनटू द एक्सप्रेशन ऑफ GS इनटू HS. हमारे पास यहाँ देखो HS में कोई भी ब्लॉक नहीं बना हुआ, दैट मीन्स इट इज अ यूनिटी फीडबैक गेन. इट इज एज क्रिस्टल क्लियर एज इट इज viewed here. Now what we will do, we will draw polar plot for HS into GS because we draw it from open loop transfer function. Now what we will do, we will see open loop transfer function GS into HS. Multiply कर देते हैं, the expression becomes 500 upon S plus 1 into S plus 3 into S plus 10. अब वही 4 पॉइंट्स कैलकुलेट करेंगे जो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा था. How? The first thing was to substitute S by j omega to make it in the frequency response domain. तो हम लोगों ने क्या किया, जहाँ जहाँ भी S था वहाँ j ओमेगा से रिप्लेस कर दिया. एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, न्यूमरेटर में तो S का कोई टर्म ही नहीं है, नो इश्यूज एट ऑल. डिनोमिनेटर में हमारे पास 3 पोल्स थे, S plus 1, S plus 3, S plus 10. तीनों में ही हम लोगों ने क्या किया, S की जगह j ओमेगा सब्स्टिट्यूट कर दिया. ठीक है, जैसे ही हम लोग यहाँ पर j ओमेगा सब्स्टिट्यूट करेंगे, सी व्हाट इज द थिंग वी आर ऑब्टेनिंग हियर. वी आर ऑब्टेनिंग a transfer function which is having complex entity. See here, it is a complex number, 1 plus imaginary part, real part plus imaginary part, real part plus imaginary part. Now what benefit we have? We can determine
मैग्नीट्यूड एंड फेज एंगल. एंड वाई वी आर डूइंग इट? बिकॉज हमें पोलर प्लॉट ड्रॉ करना है, और पोलर प्लॉट हम लोग क्या करते हैं, मैग्नीट्यूड वर्सेस फ्रीक्वेंसी और फेज एंगल वर्सेस फ्रीक्वेंसी. तो हमें सेपरेटली मैग्नीट्यूड और फ्रीक्वेंसी की जानकारी यहाँ निकालनी पड़ेगी. ठीक है, बट बिफोर जंपिंग इनटू दैट आई हैव डन वन मोर थिंग हियर विच आई लाइक टू शो यू इज रैशनलाइजेशन. हम लोगों ने डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर में कि पोलर प्लॉट ड्रॉ करने के लिए हमें 4 पॉइंट्स की जरूरत पड़ती है. वन इज एट ओमेगा इक्वल टू 0, other is at omega is equal to infinity, one is where real part of g of j omega, h of j omega is equal to 0, and the fourth was imaginary part of the function g of j omega into h of j omega should be equal to 0. Why are we doing this real part, imaginary part equal to 0? It is because we have to draw the point where it is intersecting real axis and where it is intersecting imaginary axis. ठीक है, तो ये 4 पॉइंट्स हमें जानने थे, ओमेगा इक्वल टू 0 पे, ओमेगा इक्वल टू इन्फिनिटी पे, इमेजिनरी इंटरसेप्ट पर और रियल इंटरसेप्ट पर. इन चारों पॉइंट्स के ही लोकेशंस को हम प्लॉट करने के बाद ग्राफ प्लॉट कर रहे थे. तो जब हम रियल इंटरसेप्ट और इमेजिनरी इंटरसेप्ट कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हमें करना क्या पड़ता है, हमें रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट आउट करना पड़ता है, विच वी हैव सीन इन प्रीवियस लेक्चर. तो अभी हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा, इस जो सिस्टम फंक्शन हमारे पास ऑब्टेन हुआ है ये 500 अपॉन 1 प्लस जे ओमेगा इंटू 3 प्लस जे ओमेगा इंटू 10 प्लस जे ओमेगा, वो इससे क्या करना पड़ेगा, हमें इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा. एंड हाउ डू वी डू रैशनलाइजेशन? वी सिंपली मल्टीप्लाई एंड डिवाइड इट बाई इट्स कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट. मतलब इस एक्सप्रेशन को हम लोग मल्टीप्लाई और डिवाइड किससे करेंगे, 1 माइनस जे ओमेगा 3 माइनस जे ओमेगा इंटू 10 माइनस जे ओमेगा. इसी टर्म से मल्टीप्लाई और इसी टर्म से डिवाइड. 1 माइनस जे ओमेगा 3 माइनस जे ओमेगा इंटू 10 माइनस जे ओमेगा. इस एक्सप्रेशन से इस एक्सप्रेशन को क्या करेंगे, हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे. द मिनट वी मल्टीप्लाई व्हाट विल हैपन इन डिनोमिनेटर. सी डिनोमिनेटर में क्या हो रहा है, देखो आप, डिनोमिनेटर में हमें दो पेयर मिल रहे हैं, एक जे ओमेगा प्लस 1, एक 1 प्लस 1 माइनस जे ओमेगा, राइट. तो a प्लस बी, a माइनस बी जैसा फॉर्मेट मिल रहा है. सिमिलरली सी हियर 3 प्लस जे ओमेगा 3 माइनस जे ओमेगा, a प्लस बी, a माइनस बी. वी कैन सिंपली यूज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला. व्हाट विल हैपन बाय डूइंग दिस, डिनोमिनेटर से क्या होगा, हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स टर्म है वो रिमूव हो जाएगा. व्हाट बेनिफिट इट विल गिव टू अस, हमारा जो एक्सप्रेशन है वो सिंपली एक x प्लस जे वाई या x माइनस डिपेंडिंग अपॉन साइन जो भी निकल कर आ रहा है, ये एक रैशनलाइज्ड कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा जिसमें एक रियल पार्ट होगा और एक इमेजिनरी पार्ट होगा. इससे हमें क्या मिल रहा है, हम सेपरेटली रियल और इमेजिनरी को रियलाइज कर पा रहे हैं. नाउ लेट्स कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड. हमारे पास एक्सप्रेशन क्या आया था, 1 प्लस जे ओमेगा 3 प्लस जे ओमेगा इंटू रूट अंडर 10 प्लस जे ओमेगा. क्या कर सकते हैं, रूट अंडर रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर. इन द प्रीवियस सी वी हैव सिंप्लीफाइड इट, 1 प्लस जे ओमेगा, और इसको हम लोगों ने रियल और इमेजिनरी कॉम्पोनेंट्स में यहाँ पर आपस में टर्म को मल्टीप्लाई करके रियल और इमेजिनरी पार्ट को क्या किया था, सेपरेट आउट कर लिया था डिनोमिनेटर में, सच दैट हमें ईजी हो जाए सिर्फ कैलकुलेशन करना. इफ यू डोंट वांट, you can simply do what, you can simply take it as 500 divided by root under 1 square plus omega square into root under 3 square plus omega square into root under 10 square plus omega square. ठीक है, we can simply do it also, or we can simplify it also. It is up to our own wish. We'll get the same values of magnitude. जैसे ही हम लोगों ने क्या किया, रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर करने की कोशिश की, व्हाट डू वी गेट, वी गेट एन एक्सप्रेशन ऑफ मैग्नीट्यूड. यहाँ पर मैग्नीट्यूड का एक्सप्रेशन कुछ इस तरह का आ गया, 500 अपॉन जो डिनोमिनेटर में रियल पार्ट था उसका स्क्वायर किया, जो इमेजिनरी पार्ट था उसका स्क्वायर किया. ठीक है, फेज एंगल के लिए क्या करेंगे, सी न्यूमरेटर में जब हमारे पास जो एक्सप्रेशन है, सी न्यूमरेटर में वी डोंट हैव एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, व्हाई इट इज ओनली 500. एंड वी हैव ऑलरेडी टोल्ड कि एंगल जो अगर मैग्नीट्यूड है सिर्फ, वी कैन ट्रीट इट एज 500 प्लस जे 0, और अगर हम इसका एंगल लिखने की कोशिश करें तो इट कैन बी tan इनवर्स 0 बाई 500 विच इज 0 ओनली. सो वी डोंट कंसिडर इट. तो हम कंसिडर क्या करेंगे, सिर्फ डिनोमिनेटर का एंगल, एंड व्हाट इट विल बी, माइनस tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट.
तो माइनस ऑफ tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट हमारा कितना था 43 ओमेगा माइनस ओमेगा क्यूब डिवाइडेड बाई रियल पार्ट कितना था -14 ओमेगा स्क्वायर प्लस 30। तो हमें मैग्नीट्यूड और फेज एंगल सेपरेटली मिल गया। ठीक है, what is the next thing? To calculate those values which we have discussed, omega at omega equal to 0 and infinity. So let's do that. Start of the plot, we'll calculate the value of the magnitude as well as phase angle at a value omega is equal to 0. चलो क्या करते हैं हम लोग यहाँ पर ओमेगा की वैल्यू जरा 0 सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ठीक है, what will happen when we substitute here 0? This terms vanishes, it is only root under 30 square. Here what happens? Both the term vanishes. ठीक है, न्यूमरेटर में इट इज 500 ओनली, डिनोमिनेटर में व्हाट रिमेन्स इज रूट अंडर 30 का होल स्क्वायर। व्हेन वी मल्टीप्लाई इट वी गेट अ नंबर इक्वल टू 16.67। नाउ व्हाट अबाउट द एंगल एट इंफिनिटी एट 0? सब्स्टिट्यूट हियर एज 0, इट बिकम्स tan इनवर्स 0, हियर इट इज 0, हियर इट इज 0, तो न्यूमरेटर में क्या हो गया 0 एंड डिनोमिनेटर में बाई सम नंबर 30। ठीक है, तो tan इनवर्स 0 बिकम्स 0 डिग्री, तो हमें क्या मैग्नीट्यूड और स्टार्टिंग पॉइंट का एंगल मिला 16.67 एंड एंगल इज 0 डिग्री। ठीक है, नाउ लेट्स कैलकुलेट द सेकंड वैल्यू which is at omega equal to infinity. Now we have an expression of infinity in denominator. The minute we substitute omega की जगह infinity, what will happen with the magnitude? So denominator में किसी टर्म का infinity होने का मतलब that magnitude tends to 0. So infinity पर magnitude हो गया 0. जब हम फेज एंगल की बात करते हैं इन्फिनिटी पे, तो व्हाट विल हैपन? न्यूमरेटर में तो के का ओमेगा का कोई टर्म था ही नहीं, इट वाज ओनली 500 डिवाइडेड बाय tan इनवर्स व्हाट वाज हैपनिंग, ओमेगा का एक्सप्रेशन था। व्हाट हैव वी गॉट द एक्सप्रेशन? लेट अस सी अगेन, इट इज tan इनवर्स -43 ओमेगा माइनस ओमेगा क्यूब अपॉन -14 ओमेगा स्क्वायर प्लस 30। यहाँ पर ओमेगा की जगह हम लोग क्या कर रहे हैं? इन्फिनिटी। ठीक है, वी कैन सब्स्टिट्यूट इट एज infinity, and after substituting it at infinity we'll have 3 roots in the numerator. See, we have 3 values ना, omega cube, हम लोग इसको चाहें तो हम लोग सेपरेटली लिख सकते हैं ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर 3 टर्म्स में। तो व्हाट डू वी गेट? 90 का एक फेज का एक का इफेक्ट 90 हुआ, तो हमारे पास कितना बचा? द एंगल इज -270, 3 टाइम्स 90, राइट? द एंगल इज -270 डिग्री। तो हमें क्या मिल गया? मैग्नीट्यूड मिल गया, हमें एंगल मिल गया। नाउ लेट्स सी वेयर दिस प्लॉट क्रॉसेस द रियल एक्सिस। रियल एक्सिस पे क्रॉस करेगा मतलब क्या होगा? उस इंस्टेंट पर इमेजिनरी पार्ट ऑफ द सिस्टम बिकम्स 0। तो हमारे पास जो इमेजिनरी पार्ट आया था विच वॉज -43 ओमेगा माइनस ओमेगा क्यूब डिवाइडेड बाई द होल ऑफ द डिनोमिनेटर, जो टी चेन हुआ था, दिस टर्म को क्या कर दिया हम? इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि जब रियल इंटरसेप्ट होगा तो उस जगह पे इमेजिनरी टर्म इज गोइंग टू बी 0। व्हेन दिस टर्म इज गोइंग टू बी 0, व्हेन दिस टर्म इज इक्वल टू 0, एंड व्हेन इज दिस टर्म इक्वल टू 0? व्हेन दिस 43 ओमेगा माइनस ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 0। यहां से हमें क्या मिलेगा? आइदर ओमेगा इज इक्वल टू 0 और ओमेगा इज इक्वल टू, see here we take omega common, it is 43 minus omega square. So this term is equal to 0 when either omega is equal to 0 or omega square is equal to 43, where omega is equal to root under 43. तो omega की वैल्यू 6.56 रेडियन पर सेकेंड पर हमें ये क्या मिल रहा है? क्रॉसओवर हो रहा है। कहाँ पर? रियल एक्सिस पर, क्योंकि इमेजिनरी पार्ट इसी टर्म पर 0 हो रहा है। नाउ व्हाट डू वी डू? ये जो ओमेगा का वैल्यू आया है 6.56, वी सब्स्टिट्यूटेड इन रियल पार्ट। तो जैसे ही हम इसे रियल पार्ट में सब्स्टिट्यूट करेंगे हमें क्या मिल जाएगा? रियल इंटरसेप्ट। ठीक है, नेक्स्ट थिंग, वन मोर थिंग, when we have separated the real and imaginary part, we have received -x minus jy kind of a transfer function, right? इसका मतलब है रियल इंटरसेप्ट हमें क्या मिल रहा है? नेगेटिव। लेट्स टॉक अबाउट द इमेजिनरी इंटरसेप्ट ऑल्सो। इमेजिनरी इंटरसेप्ट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? जो रियल पार्ट का सेगमेंट है उसको इक्वल टू 0 करना पड़ेगा। सो इस एक्सप्रेशन को हम 0 सब्स्टिट्यूट करते हैं। ठीक है, तो व्हेन दिस इज एक्सप्रेशन इज गोइंग टू बी 0, when numerator tends to 0, and when will numerator tends to 0? This omega minus 14 omega square plus 30 will tend to equal to 0. यहाँ से क्या करेंगे? ओमेगा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, द वैल्यू जो ऑब्टेन हो रही है वो सब्स्टिट्यूट करते हैं एंड वी गेट द वैल्यूज ऑफ इंटरसेप्ट ऑल्सो, एंड हियर इन दिस केस वी आर गेटिंग एट 0। ठीक है,
अब हमें पॉइंट्स मिल गए. सी द ग्राफ इज स्टार्टिंग हियर एट दिस पॉइंट, अरे सॉरी terminating, it is starting at this point, it is crossing at a particular point. What we have option we have? Join all those points, very simple, and get the graph. Here although it is representing a expression where we have tried to mark some values, see here it is written, there one circle is drawn and omega PC is written. In the previous lectures we have also discussed about gain margin and phase margin, omega GC is written. This example is only showing you how to determine these values, gain crossover, phase crossover, gain margin and phase margin. Why? Because ultimately what is our objective? To draw a polar plot. हम क्यों बना रहे हैं? ताकि हम स्टेबिलिटी डिफाइन कर पाएँ. और हम कैसे स्टेबिलिटी डिफाइन कर पाएंगे? जैसे ही हमें क्या मिलेगी? वैल्यूज़ मिलेगी. ओमेगा जीसी, ओमेगा पीसी, गेन मार्जिन एंड फेज मार्जिन, जब तक ये वैल्यूज़ हमें नहीं अटेन होती हैं हम नहीं बता पाएंगे कि स्टेबिलिटी से ग्राफ स्टेबल है या नहीं है, या हमारा ट्रांसफर फंक्शन स्टेबल है कि नहीं है. एंड हाउ टू ऑब्टेन दीज थिंग्स इज व्हाट वी आर गोइंग टू लुक इनटू नेक्स्ट थिंग. तो चलो हम लोग रियलाइज करते हैं कि इफ़ वी हैव ड्रॉन अ प्लॉट, व्हाट टू डू सो दैट हमें क्या ऑब्टेन हो सके? गेन मार्जिन और फेज मार्जिन की वैल्यू ऑब्टेन हो सके. कैसे? हम लोग क्या करते हैं, पहले ज़रा सा रिकैप कर लेते हैं फटाफट कि व्हाट इज़ गेन मार्जिन एंड फेज मार्जिन, एंड देन वी विल सी कि अगर हमारे पास पोलर प्लॉट हम बना लें, जो 4 पॉइंट्स हम लोगों ने कैलकुलेट किए, उससे हम गेन मार्जिन फेज मार्जिन की थ्योरी तक कैसे पहुंचते हैं. सो लेट्स बिगिन. व्हाट वी नो अबाउट गेन मार्जिन. गेन मार्जिन के लिए हम लोगों ने बोला था गेन मार्जिन इज अ फैक्टर विथ विच व्हेन एक्चुअली मार्जिन वर्ड को डिफाइन करते हैं तो शायद समझना ज़्यादा आसान होगा. व्हाट इज़ द टर्म मार्जिन एनोटेटिंग? मार्जिन शब्द का मतलब क्या है? मार्जिन का मतलब यहाँ पर है कि गेन का वैल्यू कितना दूर है अपनी अनस्टेबिलिटी से. ठीक है, वो वैल्यू जो जिसके बियॉन्ड सिस्टम हमारा क्या हो जाएगा? अनस्टेबल. तो वी हैव टू नो व्हाट इज दैट कंडीशन. So that condition was, we have discussed it as, how do we calculate? We calculate it by using a simple formula, minus 20 log magnitude of the transfer function, open loop transfer function. ठीक है, minus 20 log magnitude. Magnitude at which point? At a frequency which is called as phase crossover frequency. ठीक है, उस वैल्यू को ऑब्टेन जो हो रही है हम कह रहे हैं गेन मार्जिन है. What about phase margin? Phase margin के लिए हम लोगों ने कहा था phase margin is defined as the additional amount of phase जो ऐड करके सिस्टम कहाँ पहुँच जाए? वर्ज ऑफ अनस्टेबिलिटी पर. सिस्टम जिस पॉइंट के बियॉन्ड, जिस फैक्टर को एक्सीड करने पर सिस्टम क्या हो जाए? अनस्टेबल हो जाए. एंड व्हाट इज दैट? 180 + phi. व्हाट इज phi? Phi is phase angle of that open loop transfer function at a frequency called as गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी. ठीक बात है. अब हम लोगों ने 2 टर्म्स बोले, गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी और फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी. डिनोट कर रहे थे, आप लोगों को याद होगा, हम लोग ओमेगा जीसी और फेज क्रॉसओवर को ओमेगा पीसी से. तो जब हम गेन क्रॉसओवर को डिनोट कर रहे हैं ओमेगा जीसी, फेज क्रॉसओवर को ओमेगा पीसी, तो लेट्स सी कि ये गेन क्रॉसओवर और फेज क्रॉसओवर हम कैसे यहाँ लोकेट करते हैं. सी, हम लोगों ने गेन क्रॉसओवर को क्या बोला था? गेन क्रॉसओवर, नाम से लग रहा है ना गेन के वैल्यू को क्रॉसओवर कर रहा हो. विच वैल्यू इट इज गोइंग टू बी क्रॉसओवर? द वैल्यू वेयर मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू यूनिटी. मतलब हम लोग क्या करेंगे, पूरे सिस्टम में जो हम लोग मैग्नीट्यूड और जब फर्स्ट स्टेप में ही मैग्नीट्यूड और एंगल निकालते हैं, इफ दैट मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1, दैट इज यूनिटी, एट दैट वैल्यू जो भी फ्रीक्वेंसी ऑब्टेन हो रही है उस फ्रीक्वेंसी को हम लोग कह रहे हैं गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी. ग्राफिकली हम कैसे इसको मेंशन करेंगे? तो व्हाट आर वी डूइंग टू डू? वी आर गोइंग टू टेक अ यूनिटी रेडियस सर्कल. वो जिस जगह पर हमें ग्राफ को इंटरसेक्ट करता है, दैट फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड एज गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी. क्यों, कैसे किया हम लोगों ने ये काम? हम लोगों ने सेंटर से यूनिटी रेडियस का, सी हियर इट इज यूनिटी रेडियस, दिस इज -1 पॉइंट ना, यूनिटी रेडियस का सर्कल ड्रॉ कर लिया. This circle is indicating what? A unity radius magnitude. ये मैग्नीट्यूड जिस जगह पर इंटरसेक्ट कर रहा है ग्राफ को, पोलर प्लॉट के ग्राफ को कहीं तो इंटरसेक्ट करेगा, जिस जगह पर कर रहा है दैट इज कॉल्ड एज
गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी। तो जो मैग्नीट्यूड की वैल्यू गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी से मिल रही है, सी व्हाट आर वी डूइंग हियर, वी आर कैलकुलेटिंग। एक्चुअली हम लोग अगर डेसिबल्स या लॉगरिथमिक फॉर्मेट में नहीं लिखें तो हम लोगों ने गेन मार्जिन को क्या कहा था, 1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ सिस्टम फंक्शन g ऑफ j ओमेगा इंटू h ऑफ j ओमेगा इफ इट इज एट फ्रीक्वेंसी कॉल्ड एज गेन क्रॉस फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। और एंगल के लिए क्या कहा था फेज मार्जिन के लिए, कि फेज मार्जिन के लिए 180 डिग्री प्लस फेज एंगल ऑफ g ऑफ j ओमेगा इंटू h ऑफ j ओमेगा एट ओमेगा इज इक्वल टू गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी। तो मतलब जो हमें यहाँ से यूनिटी मैग्नीट्यूड का वैल्यू मिला है गेन क्रॉसओवर का, इससे हम क्या डिटरमाइन कर पाएंगे, फेज मार्जिन। ठीक बात है। और जिस जगह पर ग्राफ ने -180 डिग्री वैल्यू को अटेन किया है वो वैल्यू क्या कहलाती है हमारी, गेन फेज क्रॉसओवर, बिकॉज वाई वी हैव डिफाइंड फेज क्रॉसओवर का फ्रीक्वेंसी वहीं जहां वैल्यू क्या हो रही है, दिस फाई वेयर दैट वैल्यू इज अटेनिंग वैल्यू इक्वल टू -180 डिग्री, ठीक है। तो हम लोगों को फाई -180 डिग्री पर अटेन हो रहा है। अब हम लोगों ने जब रियल एक्सिस और इमेजिनरी एक्सिस को डिवाइड किया था तो हमें पता था दिस इज 90 डिग्री, 0 डिग्री, दिस इज -90, दिस लाइन इज -180 and this line is -270. तो very simply we can locate the value of phase crossover frequency. कैसे, phase crossover frequency क्या है, -180 को जहाँ phase angle -180 पर अटेन कर रहा हो, कैसे हम लोग लुक थ्रू करेंगे ये बात, see here, ग्राफ इस पर्टिकुलर वैल्यू पर क्या कर रहा है, -180 वाली लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इस वाली पर्टिकुलर वैल्यू पे जो फ्रीक्वेंसी आ रही होगी दैट फ्रीक्वेंसी विल बी फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी। इसी फ्रीक्वेंसी पर तो हमें क्या करना है, 1 अपॉन मैग्नीट्यूड निकालना है जो हमें क्या दे देगा, गेन मार्जिन, ठीक है। नाउ अगर हमें ये वैल्यूज मिल भी जाएं तो हमारा ऑब्जेक्टिव तो सॉल्व हुआ नहीं, हमें स्टेबिलिटी तो पता नहीं चली। तो लेट्स सी हम कैसे डिफाइन करते हैं स्टेबिलिटी को। वंस वी हैव ऑब्टेन्ड गेन मार्जिन एंड फेज मार्जिन, व्हाट डू वी डू, बेसिकली देयर इज ओनली वन रिलेशनशिप जो थ्रू आउट फॉर एवरी काइंड ऑफ सिस्टम ये डिफाइन करने में केपेबल होता है कि हमारा सिस्टम स्टेबल है कि नहीं है, एंड दैट इज ओनली बाय लुकिंग टू द वैल्यूज ऑफ गेन मार्जिन एंड फेज मार्जिन। हाउ, when we see these values, gain margin and phase margin, both the values, ये दोनों ही values individually जब दोनों ही values positive value दे हमें result में, then and only then the system is called as a stable system. System is stable only and only when both these values are equal to positive. If any one value is equal to positive or other is equal to negative, that means system is unstable, or either both the things are negative, system becomes unstable. What about marginally stable? When the value of gain margin is equal to 1 and phase margin magnitude becomes 1 and phase angle becomes -180 degree, ठीक है ना। इसका मतलब है गेन मार्जिन का जो मैग्नीट्यूड है वो 1 आ जाए और हम क्योंकि 180 प्लस 5 करते हैं, दैट 5 शुड बी -180 डिग्री, मतलब फेज मार्जिन का वैल्यू कितना हो जाए, 0, तभी मार्जिनल कंडीशन आएगी, तभी बाउंड्री कंडीशन आएगी, दैट इज कॉल्ड एज मार्जिनली स्टेबल कंडीशन। नाउ लेट्स बिगिन अबाउट एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। क्या फायदे हैं पोलर प्लॉट्स के। तो पोलर प्लॉट क्या डिफिक्ट करता है हमको, पोल एक ही ग्राफ में पूरी फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स की कैरेक्टरिस्टिक, क्यों, क्या फायदा इस कैरेक्टरिस्टिक को जानने से, हमें स्टेबिलिटी की एनालिसिस आसान हो जाती है। थर्ड थिंग इज वी कैन वेरी इजिली डिटरमाइन गेन क्रॉसओवर एंड फेज क्रॉसओवर एज वी हैव सीन इन द एग्जांपल। नाउ व्हाट इज अ डिसएडवांटेज, डिसएडवांटेज इज दैट इट डज नॉट इंडिकेट कि कौन सा ऐसा इंडिविजुअल फैक्टर है ओपन लूप का जो क्या कंट्रीब्यूट कर रहा है, मतलब ये अनस्टेबल कर रहा है कि स्टेबल कर रहा है, दीज आर द थिंग्स, कौन सा वाला फैक्टर से अनस्टेबिलिटी आया है इज नॉट our cup of tea from polar plot, ठीक है। The next thing is the minute this transfer function becomes more complex, it is difficult for us to draw stability from this polar plot, ठीक है। I hope you must have understood what is the importance of polar plot in our systems.
and what are the demerits, like what we cannot do from any polar plot. That is it for this lecture. Thank you very much.